નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, બધાનું મારી યુટ્યુબ ચેનલ જિંદગીનો જલસોમાં તમારું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. અત્યારે જ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલ ડંકો છે તો એ વગાડવાનું ભૂલશો નહીં. તો આજે પાઠ હિન્દીમાં ધોરણ 8 દોહે એની સ્વાધ્યાય પોથી છે, એના પ્રશ્નો છે તો એ તમે જોઈ શકો છો. દોસ્તો, દોહે તમને અને બધાને ખ્યાલ છે કે દોહે છે તો કબીર કે દોહે, રહીમ કે દોહે और तुलसीदास जी के દોહે એ ખૂબ જ આમ જોઈએ તો બે પંક્તિમાં કટાક્ષમાં કહેતા હોય છે, પણ એનો અર્થ હકીકતમાં આપણા જીવનમાં ઉતાર્યા જેવો છે. તો હવે વાર લગાડવી નથી, તો અત્યારે જ આપણે સ્વાધ્યાયના જે વિકલ્પના પ્રશ્નો છે. પ્રશ્ન 1 કે निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में લખો. એટલે કે એમાં સીધા જવાબ તમારે લખવાના છે. આમાં કોઈ ઉતારો કરવો નથી, વાંચવાનું છે, વિડીયો સાંભળવાનો છે અને તમને મજા આવે એટલે તરત જ લાઈક કરી નાખવાની છે, શેર કરવાની છે અને બાજુનો ડંકો તમારે વગાડી નાખવાનો છે. એટલે પહેલો જ વિડીયો તમને સીધો મૂકીએ એટલે સીધો તમારી પાસે આવે. कबीर ने साईं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? તો એમાં સાईं એટલે આમ જોઈએ તો સાईं છે ભગવાનને સાईं કહેવામાં આવે છે. ગુરુ નહીં, સાધુ નહીં, માલિક નહીં, બરાબર. તો સાईं એટલે આપણો જવાબ છે એ આવે છે. કબીર સબકી ખેર ચાહતે हैं, તો સી જવાબ આવે છે. રહીમ માંગને વાલે મનુષ્ય को कैसा समझते हैं? તો કે જે માંગે છે એને મરેલો માને છે અને જે નથી દેતો એને તો હાવ મરેલો માને છે, બરાબર. તો મરા હુઆ મનુષ્ય સમજતે હૈ. કંચન કા કંચન એટલે સોનું, બરાબર. તો હવે ખાલી જગ્યામાં આવીએ છીએ कि कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति, એટલે કે નીચેની ખાલી જગ્યા છે એ પૂરો. સાईं इतना दीजिए જામે કુટુંબ સમાય, બરાબર. કે ભાઈ ભગવાનને એવું કહે છે કે મને એટલું જ આપો જેટલાથી મારું કુટુંબ પરિવાર છે એને ખાઈ પી શકે, બરાબર. બહુ હંગરો કરવો નથી આપણે પણ. કામ બીજું ખાલી જગ્યા છે. કામ બિગાડે આપનો જગ મેં હોત હસાય. હા, કે જો તમે તમારું કામ બગાડો, સમજ્યા વિચારા વગર કામ સમજો નહીં, કંઈ એમને સીધું કામ કર્યા લગો અને પછી એ બધું બંધ કરો એટલે જગત છે એ તમારા દાંત કાઢે. રહીમન વે નર મર ચૂકે જે કહું માંગન જાય, હમણાં આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે. તુલસીજી એવું કહે છે કે વહાં ન જઈએ, ક્યાં ન જવાનું? કે જ્યાં કંચન વરસે મેં, એટલે કે જ્યાં હોનાનો વરસાદ થાય ત્યાં બધું માન ન હોય તો ત્યાં જવું જોઈએ નહીં. બિના ડુલાએ ન મિલે જ્યો પંખા કો પવન, કે ભાઈ સફળતા કાંઈ એમને મળતી નથી. જો આપણે પવન ખાવો હોય તો પણ આપણે હાથ છે એને હલાવવો જોઈએ. એટલે કે પંખો હોય તો પંખાને જે પેલો જૂનવાની જે વીંજણો આવતો હતો તો વીંજણો છે તો વીંજણાના માધ્યમથી આપણે હાથ હલાવવો પડે. ઘણા તમે રાજા રજવાડાઓ છે એમના આ જે કંઈ છે એમના ચિત્ર કે વિડીયોમાં તમે જોયું હશે. દોસ્તો, વાત કરવાની છે સહી વાક્યાંશ ચુનકર વિધાનો છે પૂર્ણ કરવાના છે. ઉસે પસ્તાના પડતા હૈ જો बिना सोचे काम करता है, बराबर છે. चंदन वृक्ष में सौंपों का विष नहीं फैलता क्योंकि वह उत्तम प्रकृति का है. विद्या भी एक धन है क्योंकि वह उद्यम करने पर ही प्राप्त होती है. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાસ તમારા માટે કે વિદ્યા મેળવવી હોય તો એના માટે પરિશ્રમ કરવો પડે, બાકી એમને એમ કાંઈ મળી જતું નથી. એક એક વાક્યમાં ઉત્તર આપો. कबीर अपने द्वार में किसे भूखा नहीं जाने देना चाहते? तो कबीर किसी साधु या फकीर को अपने द्वार से भूखा नहीं जाने देना चाहते. जग में किसकी हंसी होती है? तो कि जग में उसकी हंसी होती है
जो बिना विचारे काम करता है और असफल होता है। कबीर किस तरह के व्यक्ति है? तो कि कबीर इस तरह के व्यक्ति है जिसकी न किसी से दोस्ती है और न किसी से दुश्मनी। कुसंग किनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो कि कुसंग उत्तम प्रकृतियों वाला का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। हीरा बड़ा क्यों है? तो हीरा बड़ा है क्योंकि वह अपनी कीमत स्वयं नहीं बताता। तुलसीदास प्रेम और धन में से किसे महत्व? तुलसीदास प्रेम और धन में से प्रेम को महत्व देते हैं। विद्या धन किसे मिलता है? विद्या धन उसको मिलता है जो उसे पाने के लिए उद्यम करता है। उद्यम मतलब परिश्रम। दो वाक्य में उत्तर आपो। कबीर कितने धन से संतुष्ट रहने वाले को गृहस्थ है? कबीर उतने ही अन्न और धन से संतुष्ट रहने वाले गृहस्थ है जिनमें से उनका कुटुंब का गुजारा हो, न यह भूखा रहे और न कोई साधु फकीर उनके दरवाजे से भूखा जाइए। कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख क्यों देता है? कबीर सोच समझकर कार्य करने की सीख देते हैं क्योंकि सोच समझकर किया गया काम ही सफल होता है। काम सफल होने पर किसी को हमारी हंसी उड़ाने का मौका नहीं मिलता है। विद्यार्थी बराबर विद्यार्थी मित्रों, तो ઝડપથી લાઈક કરજો, શેર કરજો અને તમારા વિદ્યાર્થી મિત્રોને મોકલી જ દેજો અત્યારે 1 લાઈક તો બનવી જ જોઈએ। અને સ્પેશિયલ થેન્ક જાય છે મારો વિદ્યાર્થી જેનું નામ છે યુવરાજ। हाँ, युवराज એટલે राजा। उत्तम प्रकृति के लोगों की क्या विशेषता होती है? तो उत्तम प्रकृति के लोग बुरे लोगों के साथ रहकर भी उनके दुर्गुण नहीं करते। कुसंगति उसके स्वभाव को प्रभावित नहीं कर पाती। रहीम किन को बड़ा मानते हैं? रहीम नम्रता का महत्व जानते हैं, इसीलिए वे उसे बड़ा मानते हैं। जो बड़ा होकर भी कभी अपनी बड़ाई नहीं बताई जाती है। तुलसीदास जी सच्चा स्वागत किसे मानते हैं? तुलसीदास जी बिना प्रेम के अतिथि को सच्चा स्वागत नहीं मानते। वे सच्चा स्वागत उसी को मानते हैं जिसमें मेहमान को देखकर यजमान हर्ष विभोर हो उठे और उसकी आंखों में स्नेह उमड़ आए। मोटा प्रश्न આવી ગયા છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો એકવાર પાછો લાઈક શેર સબસ્ક્રાઈબ કરી જ નાખો અત્યારે જ, વાર લાગવી ન જોઈએ। कबीर साईं से कितना मांगते हैं? कबीर संग्रह करना उचित नहीं समझते। वे भगवान से उतना ही अन्न और धन मांगते हैं जितना उसे परिवार में निर्वाह के लिए आवश्यक है। उनके परिवार में कोई भूखा न रहे और कोई दरवाजे पर आया हुआ कोई साधु फकीर भी भूखा न जाइए। कबीर इससे अधिक पाने की इच्छा नहीं करते। बिना सोचे कार्य करने से क्या होता है? विद्यार्थी मित्रों, तुमने ख्याल જ છે કે સમજ્યા વિચાર્યા વગર તમે કામ કરો તો શું થાય? બસ એમ જ। सोच समझकर कार्य करना ही बुद्धिमान है। बिना सोचे समझे कार्य करने से कार्य बिगड़ जाता है। कार्य बिगड़ने से पछतावा होता है। इतना ही नहीं, दुनिया में हंसी होती है। लोग तरह तरह के ताने मारकर मजाक उड़ाते हैं। इस तरह बिना सोचे समझे कार्य करने वाले को उसका बुरा परिणाम भोगवना पड़ता। તમારા મિત્રો ઘણી વખત તમને ટોણા મારતા જ હશે કે કાં કહેતો તો ને, चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम क्या कहते हैं? रहीम मानते हैं कि उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति बुरे लोगों के साथ रहे तो भी उनसे प्रभावित नहीं होता। चंदन के पेड़ पर सांप लिपट रहते हैं परंतु चंदन में उन सांपों का विष
पर्याप्त नहीं होता। सांपों के साथ रहकर भी चंदन उनके विष से अछूता ही रहता है। इस प्रकार चंदन और भुजंग के उदाहरण द्वारा रहीम कहते हैं कि अगर व्यक्ति उत्तम कोटि का है तो यह संसार यहाँ की बुराइयों से अलिप्त रहता है। रहीम बड़े लोगों के क्या विशेषता बताते हैं। रहीम कहते हैं कि बड़े लोग को अपने मुख से अपनी बड़ाई नहीं करते, वे कभी बड़े बोल नहीं बोलते, बड़ी बड़ी बातें कर अपना बड़प्पन दिखाया उसके स्वभाव में नहीं होता। जैसे हीरा कीमती रत्न होता है पर स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, उसी तरह बड़े लोग खुद कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यार्थी, તમને પણ ક્યારેય તમારું કાર્ય છે ક્યારેય તમારે વાગોળવાનું નથી કે ભાઈ હું આમ છું તેમ છું, એ તો બધાને ખ્યાલ જ હોય કે ભાઈ કોણ કેટલામાં છે। ચાલો લાઈક કરી નાખો, શેર કરી નાખો। तुलसीदास जी किसके घर नहीं जाना चाहते, तो कि तुलसीदास जी अपनेपन की भावना को बहुत महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि जिस घर के लोग हमें आया हुआ देखकर हर्ष का अनुभव न करें, हमें देखकर जिनकी आँखों में स्नेह की चमक न पैदा हो, उस घर में भले ही सोना बरसता हो फिर भी वे वहाँ जाना नहीं चाहिए। साची बात है। इस इकाई के दोहों में आप कौन से सद्गुण ग्रहण करेंगे। इस इकाई में संत कबीर, कवि रहीम और संत तुलसीदास जी के दोहे दिए गए हैं। कबीर की सीख है कि हम आवश्यकता से अधिक पाने की इच्छा न रखें। जो भी काम करें सोच समझ कर करें। अपने मुख से अपनी प्रशंसा करने से बचे, बिना स्वार्थ के सबका भला चाहे। रहीम जी सीख देते हैं कि हम दूसरों से कुछ भी न मांगे, अपने स्वभाव को हमेशा उत्तम बनाए रखें। तुलसीदास जी प्रेम को धन से अधिक महत्व देते हैं। वे विद्या धन पाने के लिए परिश्रम करना जरूरी समझते हैं। इस प्रकार इस इकाई को दोहों से हम दान प्रियता, संतोष, समानता, सत्संगति, विनम्रता, परिश्रम, प्रेम पूर्ण आतिथ्य आदि सद्गुण सीखते हैं। घણા બધા આમાંથી આપણને સદ્ગુણો છે એ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણને આ દોહામાંથી પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે એ આપણને આવા બધા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત થાય એટલે એક લાઈક તો બને જ છે અને સબસ્ક્રાઈબ કરી નાખો અને વિડીયો કેવો લાગે તો પાછા કોમેન્ટ કરજો। यदि भगवान आपको कुछ मांगने के लिए कहे तो आप क्या मांगना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आप गाड़ी, बंगला, दौलत, सोलत वही मांगेंगे, लेकिन नहीं। यदि भगवान मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं उसे कहूँगा, प्रभु मेरी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाए कि कठिन विषयों को भी मुझे सरल लगे। आपकी कृपा से स्वस्थ शरीर और ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि पाकर मैं व्यापार के क्षेत्र में अच्छा यश पाऊँ और अपने माता पिता तथा अन्य स्वजनों को किसी तरह का दुख न पहुंचने दूँ। इतना ही नहीं, मैं समाज की सेवा करने में भी समर्थ बन सकूं और अपने देश को भी कुछ लाभ पहुंचा सकूं। इस प्रकार मैं भगवान से अपने परिवार, समाज और देश को सुखी बनाने की शक्ति और सामर्थ्य मांगूंगा। अच्छे व्यक्ति की संगति आपको क्या लाभ हो सकते हैं। अच्छे व्यक्ति की संगति से मैं अपनी बुरी आदतों छोड़ सकूंगा, मेरा चरित्र अच्छा बनेगा, मेरे विचार अच्छे बनेंगे, मेरी बुद्धि अच्छी बनेगी, मैं समय का सदुपयोग करूंगा। दुर्व्यसनों में धन और शरीर की बर्बादी होती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मुझे इस बर्बादी से बचाएगी। उससे मुझे अपने निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ने की
प्रेरणा मिलेगी। सभी बाधाओं को दूर करने के उपाय मिलेंगे। जीवन में सुख शांति से रहने का तरीका मिलेगा। इस प्रकार अच्छे व्यक्ति की संगति हर तरह से मेरे लिए વરદાન સિદ્ધ હોગી। દોસ્તો કહેવાય છે કે એક સારો મિત્ર અને એક સારો વ્યક્તિ છે અત્તરની દુકાન જેવો હોય છે। ભલે એને આપણે ખરીદી નહીં પણ તો પણ એ સુગંધ છે એ આપણને આપતો જ રહે છે। એટલે આવા મિત્રોની ભાઈબંધી કરજો કે જે દુઃખમાંય સાથ રહે, સુખમાં નહીં પણ દુઃખમાં साथ रहे। एवं मित्रों की भाईबंधी करजो। लोग धर्म के नाम पर कौन कौन से आडंबर करते हैं। लोग धर्म के नाम पर दाढ़ी बताते हैं, सिर पर चट्टा छूत रखते हैं, तरह तरह के तिलक करते हैं, अलग अलग तरह की मालाओं में जप करते हैं, गले में तरह तरह की मालाएं धारण करते हैं। धर्म के नाम पर लोग देवी देवियों के भोग के नाम पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर उनके सामने रखते हैं। भगवान पर सोने चांदी की आभूषण चढ़ाते हैं। धर्म के नाम पर कहीं कहीं पशुओं की बलि भी दी जाती है। આમાં બધા લોકોના છે મત મતાંતર નોખા નોખા હોય એટલે જે કંઈ છે આવું છે એટલે કોઈએ મનમાં લેવું નહીં। હા, નકર હમણાં કોરો મૂક્યો હોય તો હમણાં તમે કહો કે લે સાહેબ તમે તો કોરો મૂક્યો, સાહેબને નહીં આવડતો હોય કે શું। ओके चलो। लोग किन किन कारणों से भीख मांगते हैं। कुछ लोग जीविका का कोई साधन न होने पर मजबूर होकर भीख मांगते हैं, बराबर से। कुछ लोग भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोपों में सब कुछ नष्ट हो जाने पर भीख मांगते हैं। कुछ लोग अपाहिज हो जाने पर पेट भरने के लिए भीख मांगते हैं। गुंडे बदमाश लोग बच्चों का अपहरण कर उन्हें उपाहिज बना देते हैं, तब वे बच्चे उन दुष्टों के लिए भीख मांगते हैं। कुछ कमज़ोर और बेशर्म लोग मेहनत करने से बचने के लिए भीख को ही अपना व्यवसाय बना लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो उद्यम तो परिश्रम, उद्यम से ही सफलता मिलती है। प्रकृति तो प्रकृति है कि स्वभाव, वह सरल प्रकृति का व्यक्ति है। खैर यानी कि कुशलता, मैं आप सबकी खैर चाहता हूँ। कुसंग यानी कि बुरी संगत, कुसंग करने से हमारा पतन होता है। कंचन यानी कि सोना, सास ने बहू की कंचन की भंगन दिए। जप माला, जप करने की माला। दादाजी जप माला लेकर मंदिर जाती है, यानी कि दादाजी या दादा के दादी છે એ મંદિરે છે માળા લઈને જાય છે। दुख यानी कि गम, किसी स्पर्धा में हारने पर दुख होता है। भुजंग, भुजंग यानी कि सांप, भुजंग को देखकर ही लोग डर जाते हैं અને ઘણા એને કોથરામ પૂરી લે છે। हर्षे, हर्षे यानी कि खुशी, हमें देखकर जिनका मन हर्षे उसी के घर जाना चाहिए। ઘણા દોસ્તો આપણને જોવે અથવા તો મારા વિદ્યાર્થી છે મને જોવે એટલે રાજી રાજી થઈ જાય, ખ્યાલ છે કે હમણાં સાહેબ કંઈક કહે। ચાલો પહેલિયા છે, પહેલિયા यानी कि ગુજરાતીમાં આપણે ઉખાણા કહે છે। तन है हरा मुँह है लाल, पिंजरे में रख कर जो मुझे पाल। सवेरे बोलता हूँ नित्य राम राम, खाता हूँ हरी मिर्च अमरूद और आम। तो तोता, तोता यानी कि पोपट। पंख नहीं है फिर भी मैं उड़ती हूँ, बस एक धागे से जमीन से जुड़ती हूँ। बातें खूब हवा से करती, फट जाए धागा और जमीन पर गिरती हूँ। શું કહે છે? પતંગ। હમણાં જ ઉતરાયણ ગઈ દોસ્તો। ची ची करके शोर मचाती, सुबह होते ही सबको उठाती। चहक चहक कर गाती गाने, કુદક કુદક કર ચૂકતી દાને। તો ચકલી છે, ચીંચી આવ્યો એટલે સમજી ગયા તમે ચકલી જ છે।
कबीर, रहीम और अन्य रचनाओं के बारे में लिखिए। कबीर तो के कबीरे છે એની અન્ય રચનાઓ કરી છે, ખાસ કરીને કબીર વાણી, કબીર કે પદ, કબીર ગ્રંથાવલી, તો આ બધા છે એમાં પણ ઘણા બધા બુકો આપણને વાંચવા મળે છે। પછી રહીમે પણ લખ્યું છે કે રહીમ કે દોહે, રહીમ કે પદ और રહીમ સતસહી। તુલસીદાસજીનું છે વિનય પત્રિકા, રામચરિત માનસ, રામલલ્લા, નಹುસુ। રામચરિત માનસ છે તુલસીજીનું ખૂબ જ સરસ ગ્રંથ છે દોસ્તો। હિન્દુના ઘરમાં છે રામચરિત માનસ આપણે હોય જ છે, ઘણી બધી જગ્યાએ તમે જોતા જ છો। મોરારી બાપુ છે તો એ પણ કથામાં છે રામચરિત માનસ વાંચે છે, બરાબર। તો અહીંયા છે એ આપણો દોહે છે એ અહીંયા પૂરું થયું છે, અને અહીંયા તમારા શિક્ષકની સહી પણ કરાવી નાખવાની છે। ચાલો દોસ્તો, તમને મજા આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરો અને આ સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને બાજુનો ડંકો છે એ વગાડવાનું ભૂલતા નહીં। બસ આજે આટલું, બસ તમે બધા મજામાં રહો અને લાઈક કરો અને શેર કરતા રહ્યો, એટલે બીજો વિડીયો થોડાક દિવસમાં પાછો આવી જશે। ચાલો દોસ્તો, જય સિયા રામ, રામ રામ, નમસ્તે।